Greetings of the day to everyone. Today we are going to discuss about a very sensitive topic. The topic of discussion is child marriage. As I have shown in the background, there is an image which I have created. In this image, there is a beautiful young child in her traditional wedding dress. But the society fails to understand. The society fails to understand this child getting married at a young age will get trapped forever and ever. Child marriage has been persisting in this country, which has been launching space missions one after other in this country, which has been claiming to be one of the world's finest economy. So we need to address this issue very seriously. Child marriage is not only an ill impact on the society that has been taking place in our country, but child marriage has been taking place across the globe as well. We will evaluate this topic with certain relevant examples and see what are the major challenges, what are the consequences of child marriage. So the topic of discussion is child marriage. Now, child marriage in India. In India, child marriage reduced from 47.4% in 2005-2006 to 26.8% in 2015-2016. So, if you see the trends of child marriage in India, it was 47.4% in 2005-2006. How much was it? It was 47.4%. But this has reduced. Definitely there is an improvement, 26.8% in 2016. That is a very good sign. But is it good enough? Now, in last 5 years, it declined 3.5 points to reach 23.3%. Now, if you further evaluate, from 47.4% it reached 26.8%, but as per a data, it has reached 23.3% in 2020-2021 year. Now, this was given by National Family Health Survey 5 data. So, National Family Health Survey, what they are quoting is there has been a decline in child marriage over the years in India. There is a growing trend for decline in overall prevalence of child marriage, but 28.3% is still disturbingly high percentage in a country with a population of 141.2 crore. Understand, what we are seeing, हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं 47.4% से चाइल्ड मैरिज घटकर 26.8% आ चुका है, और वहां से वो 3% और कम कर 23.3% आ चुका है 2021 तक. अब समझने वाली बात क्या है? क्या 23.3% तक आना एक अच्छी बात है? डेफिनेटली अच्छी बात है कि ओवर द इयर्स हमने उस पर एम्फेसाइज किया है और काम किया है, तो चाइल्ड मैरिज कम हुआ है. बट लोगों को यह समझना भी जरूरी है, ये 23.3% कितना पॉपुलेशन का है? 141.2 करोड़ पॉपुलेशन का है. अब ये जो 23.3% है, बहुत ह्यूज नंबर हो जाता है. तो ये एक मेजर चीज आपको नोट करना है. तो आपको ये फर्दर रिड्यूस करना पड़ेगा. ठीक है. 8 states have higher prevalence of child marriage than national average. भारत में जो नेशनल एवरेज है, हर स्टेट का मिलाकर एक नेशनल एवरेज है कि चाइल्ड मैरिज इतना होता है. भारत में 8 स्टेट्स में उस नेशनल एवरेज से ज्यादा चाइल्ड मैरिज परसिस्ट करता है. अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं. यहां पर वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा टॉप द लिस्ट with more than 40% of women aged between 20 to 24 years have married below 18 years. चीज को समझिए, वेस्ट बंगाल और बिहार एंड त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, बिहार और त्रिपुरा भारत के 3 ऐसे स्टेट्स हैं
जहां पर एक सर्वे करवाया गया था, तो 20 से 24 साल के बीच में, 20 से 24 इयर्स के बीच के महिलाओं का सर्वे किया था, तो यह पता चलता है कि इन महिलाओं की शादी लगभग इस एज में से 40% जो महिलाओं की शादी है 18 साल से पहले हो चुकी थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, तो 20 से 24 साल में 40%, उसमें जो महिला 100% मान लो, तो उसमें से 40% की शादी 18 साल से पहले हो चुकी थी। Some states have shown in reduction in child marriage। अगर वेस्ट बंगाल, बिहार और त्रिपुरा ने चाइल्ड मैरिज में अच्छा काम नहीं किया, तो कुछ स्टेट्स में अच्छा कार्य किया भी है। फॉर एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश में चाइल्ड मैरिज 32.4% से 23.1% हो गया है। सो मध्य प्रदेश ने एक इंप्रूवमेंट शो किया। राजस्थान ने इंप्रूवमेंट शो किया, 35.4% से 25.4% आ चुका है। तो इन स्टेट्स ने, ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट्स ने चाइल्ड मैरिज में काम नहीं किया है या चाइल्ड मैरिज के खिलाफ एक्शन नहीं लिया है। वेस्ट बंगाल, बिहार और त्रिपुरा का परफॉर्मेंस बुरा रहा है, मानने वाली बात है, बट मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड हरियाणा जैसे स्टेट्स जो कि चाइल्ड मैरिज यहां पर बहुत होता था, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है ओवर द इयर्स। तो इधर के पॉपुलेशन को और इधर के फैमिलीज को इनके एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट करना भी बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। नाउ लेट अस मूव फर्दर। अगर आप ग्लोबल सिनेरियो देखें, चाइल्ड मैरिज को लेकर ग्लोबल सिनेरियो देखें, अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम यूनिसेफ, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स मैरिड इन चाइल्डहुड स्टैंड्स एट 12 मिलियन पर ईयर। अगर आप ग्लोबल सिनेरियो देखें, जो यूनिसेफ ने डाटा दिया है, यूनिसेफ ये कह रहा है जितने गर्ल चाइल्डहुड में मैरिज हुए हैं वो कितने हैं, 12 मिलियन है। 12 मिलियन गर्ल्स चाइल्डहुड में मैरिज हुए। अब अगर 12 मिलियन इज अ ह्यूज नंबर, ठीक है, 2030 यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 2030 का जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट रखा है, उसमें गोल नंबर 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो जेंडर इक्वालिटी या जेंडर इनइक्वालिटी की बात करता है, उसमें साफ साफ ये बात करा है, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ बात करा है। सो हर कंट्री को ये फोकस करना चाहिए कि चाइल्ड मैरिज को कैसे इरेडिकेट करे। ठीक है, चाइल्ड मैरिज के बारे में, फोर्स्ड मैरिज के बारे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जो यूएन का है वो साफ साफ बात करता है। व्हेन इट इज encouraging that the past decade great progress has been made in South Asia। देखो, इट हैज बीन एन encouraging साइन कि साउथ एशिया में चाइल्ड मैरिज पिछले 10 साल में कम हुआ है। वर्स गर्ल्स रिस्क ऑफ मैरिंग बिफोर शी इज 18 हैज ड्रॉप्ड मोर देन a third from nearly 50% to below 30%। ठीक है, अब अगर आप देखो, कुछ स्टेट्स ने बुरा किया है, अभी भी चाइल्ड मैरिज परसिस्ट करता है, बट ये बहुत एंकरेजिंग साइन है। व्हाइल इट हैज बीन अ वेरी एंकरेजिंग साइन कि साउथ एशियन कंट्रीज में चाइल्ड मैरिज का रेट कम हुआ है पास्ट 10 साल में। ठीक है, नाउ इंपैक्ट क्या है चाइल्ड मैरिज का? अगर चाइल्ड मैरिज होता है तो उसका इंपैक्ट क्या है? While child marriage is considered as human rights violation and recognized form of sexual and gender based violence। ठीक है, देखो, चाइल्ड मैरिज एक ह्यूमन राइट वायलेशन है, एक जेंडर इनइक्वालिटी का एस्पेक्ट है चाइल्ड मैरिज, बिकॉज एवरी चाइल्ड, बी इट गर्ल और बॉय हु इज बोर्न इन दिस वर्ल्ड हैज एवरी राइट टू लिव फ्रीली। ठीक है, द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ चाइल्ड मैरिज इज मैनिफेस्टेड अक्रॉस मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। देखो, एक डेफिनेटली इट्स अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इट्स अ वायलेशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, एंड डेफिनेटली once a girl gets married before 18, after marriage the girl faces lot of troubles in her maternal life, in her pregnancy life, all this aspect, and on her personal health as well। ठीक है, recently 10 infants died at Murshidabad Medical College and in hospital in span of 24 hours। ये जो है पिछले नवंबर की बात है, मुर्शिदाबाद में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 24 घंटे के अंदर 10 बच्चों की मृत्यु हो गई, इन्फेंट्स की मृत्यु हो गई। अब मुर्शिदाबाद मैंने क्यों एग्जांपल लिया, आप समझिए। ठीक है, अब मुर्शिदाबाद में जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज है, उन्होंने ये कहा कि इनके डेथ होने का कारण क्या है, जो चाइल्ड जन्म लिए हैं उनका जो वेट है, वो बर्थ वेट था, वो बहुत लो था। ठीक है, लो बर्थ रेट के साथ बॉर्न हुए हैं।
Murshidabad, one of the economically poor districts of the state, has one of the highest number of child marriages. ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, मुर्शिदाबाद कंपैरेटिवली एक पुअरर स्टेट है, वेस्ट बंगाल में लाइक करता है, इस स्टेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिजेस होते हैं. अब दैट मींस यंग एज में चाइल्ड मैरिज करो तो आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रॉब्लम आएगा, आपका जो बेबी का बर्थ रेट है वो कम हो सकता है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, और रिजल्ट वुड बी दिस दैट 10 infant has lost their life. National Family Health Survey 5 points out that 55.4% of women aged between 20 to 24 years are married before 18 years in the district. अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने क्या कहा है कि मुर्शिदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, उसमें 20 से 24 इयर्स के बीच की महिला, इसमें से 55 उस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, 55.4, अगर 20 से 24 एज की महिला 100 महिला है तो उसमें से 55.4 महिला 18 साल से पहले शादी कर चुकी होती है, विच इज द रीजन जो वहां पर इनको आफ्टर मैरिज इनको हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है, इनका प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रॉब्लम आती है, बेबीज को न्यूट्रिशन प्रॉब्लम होता है. ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट सॉ अ राइज फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 नंबर्स विच स्टूड एट 53.5%. अगर ये देखो तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में जो नंबर्स थे उससे चाइल्ड मैरिज मुर्शिदाबाद में ज्यादा हुआ है, विच इज इन द वेस्ट बंगाल, एंड दिस इज अ वेरी अलार्मिंग साइन. ठीक है, नाउ क्या इसके लिए कोई लीगल इंटरवेंशन है? डेफिनेटली देयर आर सर्वल लॉज इंक्लूडिंग प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, बहुत लॉज है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012. ठीक है, तो ये लॉस है. ठीक है, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021. ठीक है, देयर आर लॉस. देखो, चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ये पहला लॉ है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं. ठीक है, ये पहला लॉ है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006. ठीक है, सेकेंड लॉ जो आप बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, ये दूसरा लॉ है. तीसरा एक लॉ है, द प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन चाइल्ड मैरिज बिल 2021. ठीक है, एक अमेंडमेंट बिल लेकर आए थे जो विमेन के एज को 18 से 21 साल करना चाहते हैं, मैरिज एज को. ये सारी बातें हैं, बट इट इज द सोसाइटी विच हैज टू डिसाइड कि चाइल्ड मैरिज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. गवर्नमेंट बहुत स्कीम्स भी लॉन्च करती है. आई विल शो यू. गवर्नमेंट सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना क्यों लॉन्च करती है? टू मेक श्योर a child is born safely, a child lives safely, and child enjoys the world. Understand, when you are marrying a child, a girl child below the 18 years of age, she does not have ample amount of maturity to survive in the family she goes into, which can lead to large number of divorce cases, which can lead into after marriage problems. Even if she gets adjusted to the family during her pregnancy or during her further life, she will face lot of problems. Child marriage can reflect on the health of the baby she is having. Child marriage stops her to a greater extent from getting further education. Child marriage stops her from getting employed into a good sector. So, before indulging people or before supporting the people in child marriage, think twice. And if we as a nation are able to curb child marriage, it will be a great boon. That's all for the day. Thank you so much and have a nice day.